ایک ایسا ملک جو بیک وقت یورپ اور ایشیا دونوں میں پھیلا ہوا ہے، جسے حقیقی معنوں میں لینڈ آف ونڈرز کہنا بالکل بجا لگتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی زیادہ بچوں کا خاندان بناتا ہے تو حکومت کی طرف سے اسے مالی سہولیات اور مراعات دی جاتی ہیں، اور اس ملک کا دارالحکومت دنیا کے ان چند شہروں میں شامل ہے جس کا نام کئی بار تبدیل کیا جا چکا ہے۔ یہاں کے لوگ معاشی طور پر خاصے مستحکم ہیں، اور بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے رہائش کے اعتبار سے یہ دنیا کے بہترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ کاروبار کرنے والوں کو بھی یہاں خاصی آزادی حاصل ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں سال میں ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ نیا سال منایا جاتا ہے۔ اور بچپن میں جو سوتا ہوا شہر آپ نے کہانیوں میں سنا ہوگا وہ یہاں حقیقت میں بھی موجود ہے۔ جی ہاں، آج بات ہو رہی ہے قازقستان کی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کے دور میں یہاں کے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جان کر بھی آپ کو حیرت ہو سکتی ہے کہ یہاں صحت سے متعلق کچھ مسائل بھی پائے جاتے ہیں، جن میں HIV جیسے چیلنجز شامل ہیں، جبکہ معاشرتی سطح پر بھی مختلف پیچیدگیاں موجود ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے قازقستان، جس کا سرکاری نام ریپبلک آف قازقستان ہے، اور اس نام کی جڑیں ترک زبان سے نکلتی ہیں، جہاں قزاق کا مطلب آزاد یا بہادر لوگ لیا جاتا ہے، اور ستان کا مطلب سرزمین ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی سرزمین جہاں خوبصورتی اور طاقت ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ زبانوں کے لحاظ سے قازقستان ایک نہایت متنوع ملک ہے، جہاں قازق اور روسی دونوں کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ قازق زبان اپنی اصل میں ایک ترک زبان ہے، جس میں وقت کے ساتھ روسی، عربی، فارسی، منگول اور دیگر ترک زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے گئے۔ یہ زبان صدیوں کے دوران مسلسل ارتقاء کے مراحل سے گزری ہے۔ 1940 سے پہلے یہاں عربی رسم الخط استعمال ہوتا تھا، پھر روسی دور میں سرل حروف تہجی اپنائے گئے، اور آج بھی یہی رسم الخط زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں اوئگر، ازبک، تاتار، کرغیز، یوکرینی اور کئی دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جو اس کی ثقافتی رنگینی کو مزید بڑھاتی ہیں۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 2,27,24,900 مربع کلومیٹر ہے، یعنی یہ پاکستان سے کئی گنا بڑا اور مغربی یورپ کے مجموعی رقبے سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لاکڈ ملک بھی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے رقبے کے باوجود اس کی آبادی نسبتاً کم ہے، جس کی وجہ سے یہاں کھلے میدان، وسیع خالی زمینیں اور قدرتی وسائل ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت کی جانب سے آبادی بڑھانے کے لیے خصوصی مراعات بھی دی جاتی ہیں، خاص طور پر مادر ہیروئن جیسے پروگرام کے تحت زیادہ بچوں والی ماؤں کو مالی انعامات اور اعزازات فراہم کیے جاتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے قازقستان تقریباً 2,01,00,000 افراد پر مشتمل ہے، اور دنیا کے ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں آبادی کی کثافت نسبتاً کم ہے۔ مذہبی اعتبار سے یہاں زیادہ تر لوگ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ایک قابل ذکر تعداد مسیحی افراد کی بھی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی مذہب کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ ملک سیاحت اور رہائش کے لحاظ سے نسبتاً سستا سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہاں کم قیمت میں بہترین معیار کے ہوٹل رومز بھی دستیاب ہوتے ہیں، جن میں ناشتہ جیسی سہولت بھی شامل ہوتی ہے، جو سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ اور خوشگوار تجربہ بن جاتا ہے۔ قازقستان کا ایک مشہور روایتی کھانا بیش برمک ہے، جس کا مطلب 5 انگلیاں ہیں، کیونکہ اسے عام طور پر ہاتھوں سے کھایا جاتا ہے۔ یہ ڈش زیادہ تر گوشت اور نوڈلز پر مشتمل ہوتی ہے، اور وسطی ایشیا کی روایتی خوراک کا اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ یہاں کی مہمان نوازی اپنی ایک خاص پہچان رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی قازق گھر میں مہمان بنے تو وہاں کھانے کے مختلف حصے روایتی انداز اور علامتی معنی کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ روایات میں مخصوص حصے مخصوص لوگوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ عزت اور دعاؤں کا اظہار کیا جا سکے۔ یہ روایتی انداز ان کی ثقافت کو مزید منفرد اور دلچسپ بنا دیتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو قازقستان ایک ایسا ملک ہے جو بیک وقت ایشیا اور یورپ دونوں میں واقع ہے۔ دریائے یورل اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک طرف ایشیا اور دوسری طرف یورپ۔ یہ ملک 14 صوبوں میں تقسیم ہے، اور اس کی سرزمین اتنی وسیع اور متنوع ہے کہ کہیں برف سے ڈھکے پہاڑ ہیں، کہیں سرسبز میدان، کہیں دریا بہ رہے ہیں تو کہیں سنسان صحرا، اور کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جو آج بھی راز بنے ہوئے ہیں، جہاں غیر معمولی نوعیت کے واقعات کی رپورٹ سامنے آتی رہتی ہیں، جنہیں سائنس ابھی مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اگر آپ کسی کو ڈاگ کہتے سنیں تو حیران نہ ہوں، کیونکہ مقامی زبان کے بعض لہجوں میں اس کا مطلب کھاؤ لیا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں یہاں کے لوگ خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے، اور تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، مگر سوویت دور اور اس کے بعد آزادی کے بعد تعلیم پر خاص توجہ دی گئی۔
जिसके नतीजे में आज यहाँ शरह ख्वानदगी तकरीबन 99.5% तक पहुंच चुकी है, जो एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है। इसकी सरहदें कई अहम खित्तों और ममालिक से मिलती हैं। जनूब मगरिब में बहीरा कैस्पियन, जनूब में तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, जनूब मशरिक में किर्गिज़स्तान, मशरिक में चीन और मंगोलिया, जबकि शुमाल और मगरिब की तरफ रूस के साथ इसकी तवील सरहद जुड़ी हुई है। और अब आते हैं इसके दारुल खिलाफा की तरफ, जिसका मौजूदा नाम नूर सुल्तान रखा गया था, जो पहले आस्ताना कहलाता था। कभी इस शहर को अकमोला के नाम से जाना जाता था और इससे भी पहले अलमाती इस मुल्क का दारुल हुकूमत रह चुका है। एक ही मकाम के नामों में इस कदर तब्दीली वाकई कम देखने को मिलती है। ये शहर दुनिया के सर्द तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार होता है, जहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -15 डिग्री तक गिर जाना मामूल की बात है, जबकि इसकी आबादी 10 लाख से तजावुज कर चुकी है। इसके बरक्स अलमाती आज भी मुल्क का सबसे बड़ा और मुआशी एतबार से सबसे अहम शहर तस्वुर किया जाता है, जहाँ तकरीबन 35 लाख अफराद आबाद है। बलखश झील काज़ाकिस्तान के उन हैरत अंगेज कुदरती मकामात में शामिल है जो अपनी मुनफरिद साख्त की वजह से खास तवज्जो हासिल करती है। ये दुनिया की बड़ी झीलों में शुमार होती है, मगर इसकी सबसे दिलचस्प खुसूसियत यह है कि इसका एक हिस्सा मीठे पानी पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा हिस्सा नमकीन पानी रखता है। यानी एक ही झील में दो मुख्तलिफ खुसूसियात इकट्ठी मौजूद है। अगर कदीम रिवायात का जिक्र किया जाए तो कुछ काज़ख बाशिंदे आज भी अपनी खाना बदोश सकाफत और पुराने नजरियात से वाबस्ता है। इन रिवायात में फितरत और कायनात के हवाले से मुख्तलिफ तसव्वुरात पाए जाते हैं, जिनमें सूरज और चांद के बारे में रिवायती कहानियां भी शामिल हैं, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही हैं। यहाँ 1 जनवरी को दुनिया के साथ नया साल मनाया जाता है, फिर 14 जनवरी को पुराने कैलेंडर के मुताबिक एक और जश्न होता है, जबकि 22 मार्च को नौरोज मनाया जाता है, जो फारसी सकाफत से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ये तीनों दिन बाकायदा तौर पर सरकारी तातीलात में शामिल होते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में काज़ाकिस्तान में सियाहत ने वाज़े तौर पर तरक्की की है। एक वक्त था जब ये मुल्क सियाहती नक्शे पर ज्यादा नुमाया नहीं था, मगर अब हालात बदल रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से लोग यहाँ के खूबसूरत कुदरती मनाजिर, जदीद तर्ज के शहर और मुनफरिद सकाफती माहौल को देखने के लिए आ रहे हैं। बदलते हुए समाजी रुझानात और जदीद लाइफस्टाइल ने भी इस दिलचस्पी को बढ़ाने में किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में हुकूमत ने सियाहत को फरोग देने के लिए वीजा पॉलिसी में नरमी पैदा की है। अब 90 से जायद ममालिक के शहरियों को बगैर वीजा आमद की सहूलत हासिल है, जहां रूस के शहरी 90 दिन तक क़याम कर सकते हैं, जबकि यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले अफराद को 30 दिन तक वीजा फ्री रहने की इजाजत दी जाती है। अलबत्ता पाकिस्तान और भारत के शहरियों के लिए सफर से पहले वीजा हासिल करना जरूरी होता है। काज़ाकिस्तान की करेंसी को टेंगे कहा जाता है, जो मुल्क की मईशत का एक अहम हिस्सा है। जैसे जैसे मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे कवानीन और सिक्योरिटी के निजाम को भी मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। खास तौर पर हसास मकामात जैसे हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और सरकारी या अस्करी इमारतों के अंदर तस्वीर लेना या कैमरा इस्तेमाल करना महदूद या ममनू हो सकता है। इस तरह के कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में सियाहों को जुर्माने या दीगर कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ आने वाले अफराद के लिए जरूरी है कि वो मकामी कवानीन और जवाबित का ख्याल रखें। काज़ाकिस्तान के कौमी परचम पर नजर डालें तो उसमें सुनहरी रंग का सूरज दिखाया गया है, जिसकी 32 किरणें तरक्की, तवानाई और खुशहाली की अलामत समझी जाती हैं। ये झंडा 4 जून 1992 को इख्तियार किया गया और आज मुल्क की शनाख्त का अहम हिस्सा है। अगर आलमी सियासत और मईशत के तनाजुर में देखा जाए तो काज़ाकिस्तान की अहमियत खास तौर पर तवानाई के शोबे में नुमाया होती है। तेल और गैस के बड़े ज़खायर की वजह से मुख्तलिफ ममालिक इस खित्ते में दिलचस्पी रखते हैं। इसी तनाजुर में इसराइल समेत कई ममालिक वस्ती एशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे हैं। काज़ाकिस्तान भी ज़रई तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बैनुल अक़वामी ताअवुन शामिल है। माजी में ऐसे अदाद-ओ-शुमार भी सामने आए कि काज़ाकिस्तान और अज़रबैजान तवानाई के शोबे में अहम सप्लायर्स के तौर पर जाने जाते रहे हैं। सोवियत यूनियन का खात्मा के बाद कई ममालिक ने काज़ाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया, जिसमें आलमी ताकतें भी शामिल थीं, और उसके बाद से इस मुल्क की बैनुल अक़वामी हैसियत मुसलसल मजबूत होती गई। रकबे के एतबार से काज़ाकिस्तान दुनिया का नवा बड़ा मुल्क है, जो इसकी जोग्राफियाई वुसअत को जाहिर करता है। जदीद दौर में इसकी पहचान में खान शतीर एंटरटेनमेंट सेंटर भी शामिल है, जो अपनी मुनफरिद खैमानुमा साख्त की वजह से दुनिया के सबसे बड़े टेंट तर्ज के ढांचों में शुमार किया जाता है और सयाहों की खास तवज्जो हासिल करता है। खान शातीर एंटरटेनमेंट सेंटर के अंदर जदीद तर्ज की सहूलियात मौजूद हैं, जिनमें शॉपिंग एरियाज, तफरीही सरगर्मियों के मकामात और सिनेमा हॉल शामिल हैं, जो मुल्क की तेजी से होती हुई तरक्की और जदीद अंदाजे जिंदगी की अक्कासी करते हैं।
इसके साथ साथ काज़िकिस्तान अपनी रवायात को भी संभाले हुए हैं। मिसाल के तौर पर यूर्त आज भी काज़िक सकाफत की एक नुमाया अलामत है, जो लकड़ी और कपड़े से तैयार किए जाने वाला एक ऐसा पोर्टेबल घर है जो माजी की खाना बदोश जिंदगी की याद दिलाता है। मुल्क की माशी तरक्की में बैरूनी सरमायाकारी ने अहम किरदार अदा किया है और इस हवाले से चीन की शमूलियत खासी नुमाया है। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के जरिए सड़कों, पुलों और रेलवे नेटवर्क्स को वुसअत दी जा रही है, जिससे मुल्क की तजारती सरगर्मियां मजीद मजबूत हो रही हैं। काज़िकिस्तान इस वक्त एक अहम इलाकाई राहदारी के तौर पर उभर रहा है, जहां तजारत, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के निजाम आपस में मुर्तबित हो रहे हैं। मजीद ये कि जदीद टेक्नोलॉजी, तवानाई के मंसूबे, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, साइंसी तहकीक और सियाहत के फरोग जैसे शोबों में भी सरमायाकारी तेजी से बढ़ रही है। इन इकदामात की बदौलत काज़िकिस्तान न सिर्फ वस्ती एशिया बल्कि आलमी सतह पर एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम हासिल करता जा रहा है, जहां मुस्तकबिल में तिजारत और मईशत के नए मौके पैदा हो रहे हैं। काज़िकिस्तान के माशरे में कुछ दिलचस्प समाजी रवैये भी देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ जगहों पर यह ख्याल पाया जाता है कि अगर कोई शख्स इमारत के अंदर बहुत ऊंची आवाज में मौसीकी चलाए या गाए तो इसे संजीदा मिजाज का नहीं समझा जाता। इससे जाहिर होता है कि जदीद दौर के बावजूद रवायती अक़दार अब भी लोगों के रवैयों पर असर डालती हैं और सकाफत का हिस्सा बनी हुई हैं। दारुल हुकूमत में वाक़े बायतरिक टावर काज़िकिस्तान की जदीद शनाख्त की एक नुमाया अलामत है। ये सिर्फ एक बुलंद इमारत ही नहीं बल्कि इसके अंदर एक खास सुनहरी हैंड प्रिंट भी मौजूद है, जहां हाथ रखने को एक अलामती अमल समझा जाता है, जैसे आप अपनी तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हों। यही वजह है कि यह मकाम सयाहों के लिए खास कशिश रखता है। इसी तरह हजरत सुल्तान मस्जिद मुल्क की सबसे बड़ी और खूबसूरत मसाजिद में शुमार होती है, जिसका फन तामीर इस्लामी रवायात और जदीद आर्किटेक्चर का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। ये जगह न सिर्फ इबादत के लिए बल्कि सयाहती लिहाज से भी खास अहमियत रखती है। काज़िकिस्तान में एक दिलचस्प और पुरस्रार मकाम भी मौजूद है, जिसे क्लीची गांव कहा जाता है, जो एकमोला सूबे का एक छोटा सा इलाका है। इस जगह के बारे में एक गैर मामूली वाकया मशहूर हुआ था, जहां कुछ अरसे तक लोगों में अचानक गहरी नींद जैसे असरात देखे गए। इस वाकये ने काफी तवज्जो हासिल की और माहिरीन ने इसकी मुख्तलिफ साइंसी वजूहात पर तहकीक भी। इस गैर मामूली वाक़े के दौरान ये भी देखा गया कि इसके असरात सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि कुछ जानवर भी इस कैफियत से मुतासिर हुए, जबकि बाज़ अफराद बेदार होने के बाद आर्जी तौर पर याददाश्त में कमी का सामना करते रहे। इस सूरत हाल ने इस इलाके को एक पुरस्रार दास्तान की शक्ल दे दी। माहिरीन की राय में इसकी मुमकिना वजह करीबी यूरेनियम कानों से निकलने वाली गैसें हो सकती हैं, जबकि कुछ लोगों ने इसे गैर मामूली या खलाई अवामिल से भी जोड़ने की कोशिश की। इसीलिए ये मकाम आज भी तहकीक और बहस का मौजू बना हुआ है। टेक्नोलॉजी के मैदान में काज़िकिस्तान ने काफी तरक्की की है और रोजमर्रा जिंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ डिजिटल एप्स इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर येंडेक्स गो, जो टैक्सी सर्विस के लिए इस्तेमाल की जाती है, काफी मकबूल है और ऊबर की तर्ज पर काम करती है। इसी तरह 2GIS एक मुफीद ऐप है, जिसमें शहर के नक्शे, इमारतों की मालूमात और मुख्तलिफ मकामात के औकात तक देखे जा सकते हैं। खरीदो फरोख्त के लिए OLX जैसी सर्विसेज इस्तेमाल होती हैं, जबकि खाने की डिलीवरी के लिए चौको फूड शहरी जिंदगी को मजीद सहल बना रही है। आबादी के हवाले से देखा जाए तो यहाँ औसत उम्र तकरीबन 71 साल के करीब है। नौजवान नस्ल में शादी का रुझान निस्बतन कम उम्र में पाया जाता है और आमतौर पर लड़कियां अपनी 20 की दहाई के वस्त में शादी को तरजीह देती हैं, जो इस माशरे के समाजी ढांचे की एक झलक पेश करता है। काज़िकिस्तान में ऑनलाइन दुनिया का अंदाज भी खासा मुनफरिद है। यहाँ VK सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशल प्लेटफॉर्म है, जो काफी हद तक फेसबुक जैसी सहूलियात फराहम करता है, जबकि फेसबुक का इस्तेमाल यहाँ दीगर ममालिक के मुकाबले में कम देखा जाता है। मुल्क का ट्रांसपोर्ट निजाम भी काफी वसी और मुनज़्ज़म है। सड़कों का नेटवर्क तकरीबन 96,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है और रेलवे लाइनें भी हजारों किलोमीटर तक मौजूद हैं। इसके अलावा मुतादिद एयरपोर्ट्स और मुख्तलिफ एयरलाइंस मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी दुनिया से जोड़े रखती हैं। रेलवे के शुदीदी 2 तरह की ट्रेनें आम हैं। एक वो जो रिवायती अंदाज की है, निस्बतन कम खर्च मगर आहिस्ता रफ्तार और ज्यादातर हर स्टेशन पर रुकती हैं। दूसरी जानिब जदीद तेज रफ्तार ट्रेनें भी चलती हैं, जो कम वक्त में तवील फासले तय कर लेती हैं, अगरचे इनका किराया कदरे ज्यादा होता है। फजाई सफर के जरिए हर साल बड़ी तादाद में मुसाफिर मुल्क के अंदर और बाहर सफर करते हैं, जबकि बहिला कैस्पियन के अतराफ में बहरी रास्ते भी नक्लो हमल में अहम किरदार अदा करते हैं। जोग्राफियाई एतबार से ये मुल्क इतना वसी है कि इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक का फासला तकरीबन लंदन से किस्कंदूर तक के बराबर समझा जाता है। इसका सबसे बुलंद पहाड़ी मकाम खान तंगरी है, जो तियान शान में वाक़ है और इसकी बुलंदी 7,000 मीटर से भी ज्यादा है। रिवायती खेलों में कोकपार खासी मकबूलियत रखता है, जिसमें घुड़सवारी और ताकत का जबरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलता है।
और ये खेल मकामी सकाफत की एक नुमाया झलक पेश करता है। काज़ाकिस्तान की मईशत में तवानाई का शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसी तनाजुर में तंगज़ ऑयल फील्ड को दुनिया के बड़े तेल के ज़खायर में शुमार किया जाता है, जो वसी रकबे पर फैला हुआ है और मुल्की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। काज़ाकिस्तान की मईशत में तवानाई का शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसी तनाजुर में तंगज़ ऑयल फील्ड को दुनिया के बड़े तेल के ज़खायर में शुमार किया जाता है, जो वसी रकबे पर फैला हुआ है और मुल्की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तारीखी पस मंजर पर नजर डालें तो इस खित्ते के कई कबाइल का ताल्लुक कदीम खाना बदोश और मंगोल नस्लों से जोड़ा जाता है। ये तारीख चंगेज खान के दौर तक पहुंचती है, जिन्होंने 1206 में एक अजीम जमीनी सल्तनत कायम की। यही तारीखी असरात आज भी काज़िक ससासत और रिवायात में किसी न किसी शक्ल में दिखाई देते हैं। टेक्नोलॉजी और जदीद निज़ाम की बात करें तो मुल्क का इंटरनेट डोमेन .kz है, जबकि करेंसी को काज़ाकिस्तानी टेंगी कहा जाता है। जोग्राफियाई वसत की वजह से ये मुल्क मुख्तलिफ टाइम जोन्स में तकसीम है, जिसके बायस वक्त का फर्क भी नुमाया रहता है। अमूमी तौर पर यह पाकिस्तान से 1 घंटा और भारत से तकरीबन आधा घंटा आगे है और मजमूई तौर पर 3 टाइम जोन्स इसके अंदर मौजूद हैं। आज के दौर में काज़ाकिस्तान को सरमाएकारी के लिए एक उभरती हुई मईशत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां माशी सरगर्मियां तेजी से फरोग पा रही हैं। तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मादनी वसाइल के शोबों में मुसलसल तरक्की हो रही है, जबकि मजमूई मईशत भी मुस्तहकम होती जा रही है। मजीद ये कि बहीरा कैस्पियन दुनिया का सबसे बड़ा अंदरूनी आबी जखीरा है जो इस खित्ते में वाक़े है और न सिर्फ जुग्राफियाई बल्कि माशी एतबार से भी इस पूरे इलाके को एक मुनफरिद अहमियत फराहम करता है। काज़ाकिस्तान और इसके आसपास के खित्ते की तारीख निहायत कदीम और दिलचस्प है। माहिरीन के मुताबिक हजारों साल पहले इसी सरजमीन पर इंसानों ने पहली बार घोड़ों को काबू करना, उनकी तरबियत करना और उन्हें सवारी के तौर पर इस्तेमाल करना सीखा, जिसने वस्ती एशिया की तहजीब को एक नई सिमत दी। वक्त गुजरने के साथ तकरीबन 800 कब्ल मसीह के करीब साका तहजीब के आसार नुमाया होने लगे, जो अपनी जंगी महारत और खाना बदोश तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर थी। इसके बाद इब्तदाई सदियों में तुर्क और मंगोल नस्ल से ताल्लुक रखने वाले कबाइल इस इलाके में आहिस्ता आहिस्ता आबाद होने लगे, जिससे यहाँ की आबादी और सकाफत में मजीद तनव्वो पैदा हुआ। 5वीं सदी तक आते आते ये खित्ता मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान कशमकश का मरकज बन गया, जहाँ बैरूनी हमलों और अंदरूनी इख्तिलाफात ने सियासी सूरत हाल को मुसलसल तब्दील किया। 8वीं सदी में अरब ताजरों और मुबल्लिगीन के जरिए इस इलाके में इस्लाम का पैगाम पहुंचा और वक्त के साथ ये मजहब यहाँ की सकाफत का अहम हिस्सा बनता गया। बाद के अदवार में खास तौर पर 11वीं और 12वीं सदी के दौरान मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान ताकत की जद्दोजहद जारी रही, जिसकी वजह से एक मुस्तहकिम निज़ाम का क़याम मुश्किल रहा। तकरीबन 1150 के आसपास शुमाली चीन से आने वाली कुव्वतों ने इस खित्ते में असर डालना शुरू किया, जिससे इलाकाई ताकतों में मजीद कमजोरी आई। इसके बाद 1219 में चंगेज खान की क़यादत में मंगोल अफवाज ने वस्ती एशिया पर एक बड़ी मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में काज़ाकिस्तान समेत पूरे खित्ते की तारीख एक नए दौर में दाखिल हो गई। बाद के अतवार में 1258 के करीब बरका खान के दौर में शुमाली और मगरबी हिस्सों में इस्लाम को सरकारी सतह पर फरोग मिला, जो इस खित्ते की मजहबी तारीख में एक अहम तब्दीली समझी जाती है। इसके बाद 1370 के बाद अमीर तैमूर ने अपनी ताकत को मुनज़्ज़म करना शुरू किया और जल्द ही वस्ती एशिया के वसी इलाकों पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। उसकी जिंदगी मुख्तलिफ जंगों और मुश्किलात से भरी रही, यहाँ तक कि एक हादसे के बाइस वो जिस्मानी तौर पर मुतासिर भी हुआ, मगर इसके बावजूद उसकी सल्तनत मुसलसल फैलती रही। 1500 के बाद काज़क खानियत ने उज़्बक खानियत से अलग होकर अपनी एक अलग शनाख्त कायम करनी शुरू की। ताहम इसके बाद जुंघर कबाइल के हमलों ने इस खित्ते को दोबारा गैर मुस्तहकम कर दिया। इसी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए रूस ने बतदरीज बहीरा कैस्पियन के शुमाली इलाकों में अपना असर और रसूख बढ़ाना शुरू किया और 1720 के बाद इसकी फौजी मौजूदगी काज़ाकिस्तान के अंदर भी बढ़ने लगी। 19वीं सदी के आगाज तक रूसी असर और रसूख इस हद तक मजबूत हो चुका था कि काज़क कबाइल बड़ी हद तक इसके ज़ेरे असर आ गए। 1837 में इस तसल्लुत के खिलाफ एक बड़ी बगावत भी सामने आई, जिसकी क़ियादत खान कैंसारी ने की। ताहम ये तहरीक ज्यादा अरसा जारी ना रह सकी और 1847 तक इसे खत्म कर दिया गया। 20वीं सदी के आगाज में, खासतौर पर 1906 के बाद, रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में किसानों को लाकर इस खित्ते में बसाया गया, जिसके नतीजे में आबादी का तनासुब और समाजी साख्त में नुमायां तब्दीलियां आईं। बाद अज़ा
1989 में नूर सुल्तान नजरबायव को काजाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत सौंपी गई। फिर 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ, जिसके बाद काजाकिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान किया और दौलत मुश्तरका आजाद रियासतों में शामिल हो गया। 1992 में ये अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना, जबकि 1993 में एक नया आईन नाफिज किया गया जिसमें काज़क ज़बान को रियासती ज़बान का दर्जा दिया गया, अगरचे रोजमर्रा मामलात में रूसी ज़बान का इस्तेमाल भी जारी रहा। 1997 में दारुल हुकूमत को अलमाती से मुंतकिल करके अकमूला ले जाया गया, जिसे बाद में आस्ताना का नाम दिया गया। आजादी के बाद मुल्क ने अपनी खारिजा पॉलिसी में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश की और मईशत को मजबूत बनाने के लिए तवानाई, तेल और मादनी वसाइल पर खास तवज्जो दी। यहाँ मुख्तलिफ नस्ली गिरोह आबाद हैं, जिनमें काज़िक अक्सरियत में है, जबकि उज़्बेक, यूक्रेनी, जर्मन, तातारी और उइगुर समेत दीगर कौमियतें भी इस माशरे का हिस्सा है। अलमाती अपनी सरसब्ज फिजा और मुतअद्दिद पार्क्स की वजह से खास पहचान रखता है, इसीलिए इसे अक्सर पार्कों का शहर भी कहा जाता है। सियासी निज़ाम के लिहाज से ये मुल्क नीम सदारती आइनी जमहूरियत पर मबनी है। मौजूदा सदर कासिम जोमार्त तोकायब हैं, जबकि नूर सुल्तान नजरबायव भी तवील अरसे तक अहम सियासी किरदार अदा करते रहे और सिक्योरिटी काउंसिल से वाबस्ता रहे। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ खवातीन को वोट का हक तकरीबन 1920 के आसपास मिल गया था, जो इस दौर के कई तरक्की याफ्ता ममालिक से भी पहले की एक नुमाया पेशरफ्त समझी जाती है। सर्द और बर्फानी इलाकों में स्नो लेपर्ड आज भी पाया जाता है, जो इस खित्ते की कुदरती हयात का एक अहम हिस्सा और खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। एक और दिलचस्प बात यह भी बयान की जाती है कि सेब के दरख्तों की इब्तदाई अक़साम अलमाती के गिरदो नवाह में पाई गई थीं और इसी निस्बत से अलमाती का मतलब भी सेबों की जगह लिया जाता है। आज भी यहाँ के बागात और कुदरती मनाजिर इस शहर को एक मुनफरिद पहचान देते हैं। वक्त के साथ साथ इस खित्ते की तारीख मुख्तलिफ तहजीबों, ताकतों और सकाफतों के असरात से गुजरती हुई आगे बढ़ी है। यही वजह है कि आज काज़ाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आता है जहां कदीम रवायात और जदीद तरक्की एक साथ नजर आती है। एक तरफ खाना बदूश तर्ज जिंदगी की झलक मिलती है, तो दूसरी तरफ जदीद शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी दिखाई देती है। कहीं रिवायती कहानियां हैं तो कहीं तरक्की के हैरान कुन मंसूबे, जो इस मुल्क को मजीद दिलचस्प बनाते हैं। उम्मीद है कि ये सब जानने के बाद आपके जहन में काज़ाकिस्तान की एक नई और मुख्तलिफ तस्वीर बनी होगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।